Hello students, welcome to the second lecture of chemical equilibrium. Last lecture we studied what is the meaning of equilibrium and how equilibrium exists in a physical state and a chemical reaction. In this lecture, I am going to make you understand how to find a speed of a particular chemical reaction. Now, try to understand. To find speed, we require distance, we require time. That's the formula. Speed is equal to distance upon time. For example, for a moving vehicle, if I ask you calculate speed, you will ask me, sir, how much distance the particular vehicle has traveled in a given time. And then you can able to calculate it by using the formula speed is equal to distance upon time. But if I ask you to calculate speed in terms of a chemical reaction, एक chemical reaction चल रहा है, उसका speed मैं आपको find करने बोल रहा हूँ. So in that case, you cannot able to find out the speed by using the distance time formula. What is the reason for that? Because आपको ये तो नहीं पता कि क्या डिस्टेंस और क्या टाइम रहेगा. आप टाइम एनालाइज कर सकते हैं, बट डिस्टेंस कैसे एनालाइज करेंगे इसके अंदर. सो to overcome this problem, to find out the speed of those type of processes जहां पर डिस्टेंस यूज नहीं होता, हम लोग डिस्टेंस की जगह पे वर्क यूज करते हैं and we calculate work upon time. That work upon time is called as rate. For example, if I ask two students to write certain work in a given amount of time, suppose मैंने उनको 2 मिनट का टाइम दिया है और मैंने उनको कुछ चीजें कंप्लीट करने बोली है. First student, after that 2 minutes, when I analyze the work, first student has written 4 pages, second student has written 3 pages. तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने गिवन टाइम में ज्यादा पेजेस कंप्लीट किए, तो उसका स्पीड ज्यादा है. So यहाँ पर मैं डिस्टेंस यूज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं वर्क यूज कर रहा हूं पर यूनिट टाइम. So where we cannot calculate speed by using distance, we calculate speed with respect to rate, and rate is nothing but work upon time. Okay, तो simply अगर मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इज टॉकिंग अबाउट rate of a chemical reaction. Okay, so we are going to discuss rate of a chemical reaction today. So rate of chemical reaction कैसा फाइंड करेंगे? So rate मैंने आपको बताया, rate is nothing but work upon time. So अगर मैं आपको पूछूंगा किसी chemical reaction के अंदर work क्या है, so you will say, sir, there are two kind of work going on. Reactants are reacting, that is the first kind of work. Product are forming, that is the second kind of work. So you will analyze the speed of any chemical reaction with respect to the amount or the change in the amount of reactant reacting or the change in the amount of product forming. Listen to me carefully. हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब स्पीड रेट फाइंड करते हैं तो वो वर्क अपॉन टाइम होता है. ओके, तो रेट इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम. बट क्वेश्चन ये है कि किसी केमिकल गिवन टाइम किसी केमिकल रिएक्शन में वर्क क्या होता है. तो दो टाइप के वर्क होते हैं. एक तो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो. So we will analyze a speed of any chemical reaction with respect to the change in amount of reactant. Change in amount of reactant. Reactant के लिए मैं R लिखता हूँ. Reactant reacting और change in amount of product. Product के लिए मैं P लिख देता हूँ. प्रोडक्ट फॉर्म. बट अमाउंट क्या, अमाउंट किस में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, किस में होगा अमाउंट. तो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलार कॉन्सेंट्रेशन में. और मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको याद होगा मोलैरिटी.
मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और इसका यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब या मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं हम लोग, आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर से, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली कैपिटल एम लिख देते हैं मोलार, और मोलार कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं या तो फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर मैं लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट ए तो दैट विल बी इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, दैट इज अमाउंट ऑफ ए। सो यू विल एनालाइज अ चेंज इन अमाउंट। अब चेंज इन अमाउंट कैसे एनालाइज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में रेट का हम लोग एक डेफिनेट फॉर्मूला बनाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसा हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सपोज एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ध्यान से देखना ये इस रिएक्शन को। सपोज एक रिएक्शन है वेयर रिएक्टेंट ए फॉर्म्स अ प्रोडक्ट बी, ठीक है। when the time was initial time t1, okay, तो हम लोग ने लाइन किया था t1 इनिशियल टाइम। सो इनिशियल टाइम में the time was t1, the amount of a, अच्छा जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, सपोज आपने ए लिया था 5 मोलार, ओके, मैं यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, 5 मोलार आपने लिया। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा। तो एज टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ओके। सो व्हेन टाइम 0 से t1 होगा, अब t1 कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी होगा, ओके। व्हेन द टाइम रीचेस टू t1, द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a left was 4 molar. When the time reached to t2, the molar concentration of a reached to 1 molar. Okay, so in a given time, that is t2 minus t1, मतलब ये दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। या तो अगर स्मॉल डिफरेंस होगा तो स्मॉल डिफरेंस के लिए हम लोग डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, dt। तो सपोज ये आपका t1 है, सपोज 10 सेकेंड है, और t2 आपका है समझो 30 सेकेंड्स। सो इन dt, द अमाउंट dt दैट इज नथिंग बट 30 माइनस 20 सेकेंड्स, मतलब 30 माइनस 10 सेकेंड्स, मतलब आपका dt कितना है, 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में कितना a रिएक्ट कर गया, तो आप बोलेंगे सर in t2 minus t1 the amount of a reacting will be, चलो कितना था, 10 सेकेंड में आपके पास कितना बचा था, 4 मोलार। 30 सेकेंड के बाद आपके पास कितना बचा, 1 मोलार। तो अगर मैं फाइंड करूं डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आप बोलेंगे सर 4 मोलार मेरे पास था, रिएक्ट होने के बाद 1 मोलार बचा है, 4 मोलार पहले था, 1 मोलार बचा है, तो रिएक्ट कितना हुआ, 4 माइनस 1 कितना मोलार रिएक्ट हुआ, 3 मोलार रिएक्ट हुआ, ओके। Are you getting my point? 3 molar react हुआ, मतलब in 20 seconds, the amount of A reacting is how much, 3 molar. Very simple to understand. Now suppose एक और reaction ले रहा हूँ, X forms Y. When the time is 0, मैंने X को लिया था 5 molar, same concentration, मतलब initial concentration दोनों का same है 5 molar. When the time was T1, 10 second, the molar concentration of X, the reactant X, I found out the molar concentration of X to be 4.5 molar. When the time was T2, that is 30 seconds, the molar concentration of X I found out to be 3 molar. तो मैं आपको पूछूंगा कि in T2 minus T1, that is dt, that is how much seconds, 20 seconds. Same देखो, same time interval लिया है, 20 seconds के interval में कितना x react किया, तो आप बोलेंगे सर the change in concentration of x, that is the amount of x reacting, will be 4.5 minus 3. So 4.5 minus 3 मतलब कितना हो गया, आपके पास 4.5 था, फिर 3 बचा, तो फिर रिएक्ट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 4.5 माइनस 3 मतलब कितना रिएक्ट हुआ, 1.5 मोलार। तो यहां पर x रिएक्ट हो रहा है 1.5 मोलार इन गिवन टाइम, यहां पर a रिएक्ट हो रहा है 3 मोलार। तो जो ज्यादा रिएक्ट होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जो ज्यादा रिएक्ट होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, इन 20 सेकेंड टाइम इंटरवल
मैंने दोनों के लिए 20 सेकेंड टाइम इंटरवल लिया. सो इन 20 सेकेंड टाइम इंटरवल ए कितना रिएक्ट हुआ है, यू सेड 3 मोलार. बी एक्स कितना रिएक्ट हुआ है सर 1.5 मोलार. तो विच रिएक्शन is having greater speed, so obviously that reaction will have a greater speed which have more reactants reacting in a given time. So now you are analyzing the speed of a chemical reaction with respect to the amount of reactant reacting, that is the change in concentration of reactant. आपने change ही find किया ना, यहाँ पर आपने 4-1 किया, यहाँ पर आपने 4.5-3 किया, मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड कर रहे हो. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल गिव यू व्हाट, द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. जहां पर ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा उसका स्पीड ज्यादा है, जहां पर कम रिएक्टेंट रिएक्ट होगा उसका स्पीड कम है. अब आप खुद ही बताओ मुझे, in 20 seconds if 3 molar of A is reacting, then obviously 3 molar of B formed होगा. If 1.5 molar of X is reacting in 20 seconds, so 1.5 molar of Y formed होगा. तो मैं आपको पूछूंगा in 20 seconds ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है in the reaction A to B, where in given time 20 seconds the amount of B forming is 3 molar, the amount of A forming is the amount of Y forming is 1.5 molar. तो जो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा वो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा है. Simple as that. So now here you are checking the speed of a chemical reaction with respect to the change in concentration of reactant or change in concentration of product with respect to change in time. So basically आप speed को judge कर रहे हो with respect to rate. तो अगर मुझे एक precise formula बनाना है इनके लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना इधर पे, I'll clear this up. So एक precise formula मुझे बनाना है with respect to rate of chemical reaction. So what I write down here, कि rates of any chemical reaction can be found out with respect to reactant or with respect to what product. तो रिएक्टेंट क्या अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपने वही फाइंड किया, तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, R2 minus R1 upon T2 minus T1. ओके, लेकिन मैं यहां पर एक माइनस साइन बाहर डाल रहा हूं, क्योंकि ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई करेगा, ये माइनस साइन ये सिग्निफाई करेगा कि एज टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. ऑब्वियस बात है, टाइम जैसे ही बढ़ता रहेगा रिएक्टेंट कम होता है, और टाइम जैसे ही बढ़ता जाता है प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. तो अगर प्रोडक्ट के लिए मुझे ये बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 इन चेंज इन टाइम. अगर ये चेंज स्मॉल चेंज है तो हम लोग डी लिखते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, where minus sign signify as time proceeds या time goes on, amount of reactant decreases. प्लस साइन क्या सिग्निफाई करता है, as time goes on amount of product increases. तो you have to analyze these two things. कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों डाला रिएक्टेंट के लिए, बिकॉज एज द टाइम गोज ऑन रिएक्टेंट कम होता जाएगा, और यहाँ प्लस साइन क्यों डाल रहा है, बिकॉज एज द टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट, इंक्रीजिंग. तो सिंपल वे है, किसी भी रिएक्शन का स्पीड फाइंड करना है, तो किसी भी रिएक्शन का अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है तो मैं उस रिएक्शन का रेट फाइंड करूंगा, एंड रेट इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. या तो रिएक्टेंट लो या तो प्रोडक्ट लो. रिएक्टेंट के लिए आप माइनस लिखोगे बिकॉज एज टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, और इसके लिए प्लस लिखोगे बिकॉज एज टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज amount of product is increasing. Okay, I hope you understood this. So this is the first way of finding out the speed of the reaction. I'll clear this up. Now what is the second way of finding out the speed of reaction? ध्यान से सुनो. The second way of finding out the speed of reaction is by application of law of
mass action. Law of mass action. What is the meaning of mass action? So mass हो गया एक amount, action मतलब acting, reacting. तो इसका मतलब सिंपल है, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा वो रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा स्पीड होगा. देखो सिंपल एनालाइज करो इसको. लॉ ऑफ मास एक्शन, सोचो इसके बारे में, सोचो. मास एक्शन, mass of a substance is reacting to form what product? If more amount of reactant is reacting, speed will be more. और हम लोग अमाउंट को किस में कैलकुलेट करते हैं? हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन, अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में है, या तो पार्शियल प्रेशर अगर वो गैस फॉर्म में है. मतलब मास को हम लोग दो चीज में कैलकुलेट करेंगे. मतलब मास द अमाउंट तो हम लोग दो चीजों में कैलकुलेट करते हैं. या तो हम लोग लिखते हैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अमाउंट, स्क्वायर ब्रैकेट से. या तो हम लोग लिखते हैं पार्शियल प्रेशर, जो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने किया है, पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में. पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर. तो ये दोनों चीज अमाउंट, लेकिन पार्शियल प्रेशर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? गैस के लिए. ये हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? सोल्यूशन फेज के लिए. ओके, तो पार्शियल प्रेशर आपको याद होगा. पार्शियल प्रेशर कैसा फाइंड करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज मोल फ्रैक्शन x of that gas into total pressure. और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर. तो यहां पर मैं जो अमाउंट में एक्सप्रेस करूंगा, किसको? रिएक्टेंट्स को. सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्रेस करना है? रिएक्टेंट्स को. यहां पर प्रोडक्ट का कोई खेल ही नहीं, ठीक है, रिएक्टेंट्स को. सो वी गोइंग टू एक्सप्रेस द amount of reactant reacting in a chemical reaction either in molar concentration, and if it is in gas it will be expressed in partial pressure. That is the individual pressure of gas in a mixture. ठीक है, इसमें हम लोग अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे. और मैंने वे बता दिया हाउ टू फाइंड पार्शियल प्रेशर. ये आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी देखा होगा. नहीं देखा है तो मेरा वो लेक्चर देख लेना, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो सिंपल है. लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या हो गया? कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अगर ज्यादा वैल्यू हो जाएगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज. सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बता देता हूँ. आई विल क्लियर दिस अप, ये आप नोट डाउन कर लेना. चलो, सो suppose a chemical reaction is going on, bimolecular reaction, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. A plus B gives a product C. So if I apply law of mass action, when you apply law of mass action, so देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है? 1 mole of A reacting with 1 mole of B. So law of mass action says that speed or the rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant, raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. तो यहाँ पर stoichiometric coefficient क्या है? 1 मोल, तो raised to 1 कर दिया मैंने. सपोज मैंने यहां पर लिया होता x moles of A and y moles of B, तो ये raised to x कर देता, ये raised to y कर देता. तो you have to remember this, note down this point. It says that law of mass action says that rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of, देखो ये product है, multiply किया, product of molar concentration of reactants raised to the power equal to the stoichiometric coefficient. अब ये molar concentration solution phase के लिए, अगर आप यही चीज gaseous phase के लिए लोगे तो gaseous phase के लिए हम लोग मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं. तो गैसियस फेज के लिए ये रिएक्शन, ये लॉ कैसा हो जाएगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज्ड टू स्मॉल x इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज्ड टू स्मॉल y.
वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पर मैंने किस में अप्लाई किया है, उसको पार्शियल प्रेशर में अप्लाई किया, क्योंकि गैस फेज था, सॉल्यूशन फेज तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, you will introduce a term k raised to x, sorry यहाँ पर b आना चाहिए, मैंने ये लिख दिया, b raised to y. Okay, similarly r is equal to k partial pressure of a raised to x and partial pressure of b raised to y. Now what is this k? K stands for rate constant. Remember, K stands for rate constant. But आपने यहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिया, इसके लिए Kc लिख देता हूं, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिया, इसके लिए Kp लिख देता हूं. Kc मोलार कॉन्सेंट्रेशन, Kp इज फॉर पार्शियल प्रेशर. बट Kc और Kp दोनों क्या है? Kc और Kp दोनों एक्चुअली में क्या है? रेट कांस्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट. ओके, सो अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा. ऑब्वियसली इफ Kc और Kp वैल्यू इज मोर, इफ Kc और Kp वैल्यू इज मोर, देन स्पीड ऑफ रिएक्शन Rxn रिएक्शन विल बी मोर. सिंपल बात है. तो अगर Kp और Kc का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, कीप दिस इन माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि Kp और Kc को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट. यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है मोलार कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है पार्शियल प्रेशर में. आई होप यू गॉट माय पॉइंट इन दिस. ओके, अब जैसा इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसा मैंने एक रिएक्शन लिया है. रिएक्शन इज सपोज या रिमेंबर दिस पॉइंट. okay, reaction लिया 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl plus 3 moles of oxygen. मैं आपको बोलूंगा इसमें अप्लाई करो लॉ ऑफ मास एक्शन. सो लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या मिलेगा हमको? दैट रेट इज इक्वल टू Kc into molar concentration of KClO3 raised to 2. देखो रिएक्टेंट लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लिया. सपोज मैंने ऐसा लिखा है कि N2 gas plus 3 moles of H2 gas gives 2 moles of ammonia gas. मैंने आपको बोला देखो गैस में लिया, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करो. चलो तो आप बोलेंगे सर रेट इज इक्वल टू Kp into partial pressure of N2 raised to 1, partial pressure of N2 raised to 1 and partial pressure of hydrogen raised to 3. So this is the application of law of mass action where Kp and Kc stands for the rate constant or also called as velocity constant. क्लियर है? अब रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोग ने इसको याद कर लेने का कि Kc लिया है तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन, Kp लिया है तो पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस हो रहा है. गॉट इट गाइस? नाउ लेट्स मूव अहेड and find out one more term in this that is called as. अब ये देखो Kc और Kp क्या है? रेट कांस्टेंट. अब हम जो टर्म फाइंड करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आई क्लियर दिस अप. क्योंकि पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम पे है तो सर इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी. सो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दो टाइप के हम लोग कर देते हैं. एक हो जाएगा Kc मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक हो जाएगा Kp. सो हम लोग यहाँ बात करेंगे Kc और Kp की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc कब यूज करना? जब आप मोलार कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो. Kp जब यूज करना जब आप पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हो. ओके, तो Kc और Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां पर एग्जिस्ट होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जिस्ट होगा इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? याद है आपको? रिवर्सेबल. तो मैं एक रिवर्सेबल रिएक्शन ले रहा हूं, ध्यान दो. A प्लस B रिवर्सेबल C प्लस D. ठीक है. Now if I talk about forward reaction, और सब 1 मोल लिया है मैंने. In case of forward reaction, the speed of forward reaction will be directly proportional to molar concentration of A raised to 1 and molar concentration of B raised to 1.
बिकॉज अकॉर्डिंग टू, ये कौन सा आ गया, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है. तो इसके लिए मैंने क्या लिया, द स्पीड, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A:1 एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B:1. ठीक है. अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां से निकालूंगा तो RF विल बी इक्वल टू KF. KF स्टैंड्स फॉर व्हाट, the rate constant for which reaction, forward reaction, is equal to molar concentration of A:1, molar concentration of B:1. Now if I talk about backward reaction, so आप बताओ backward reaction में law of mass action सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, reactants पे. so backward reaction में reactant कौन है, obviously backward reaction में reactant है C और D. तो मैं आपको पूछूंगा rate of backward reaction, तो आप बोलेंगे सर rate of backward reaction will be equal to KB into molar concentration of C:1 into molar concentration of D:1. ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि रीजन क्या है कि बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, सी और डी है. फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है. और लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे अप्लाई होता है, ओनली फॉर रिएक्टेंट्स. तो ये भी हम लोग ने कहां से लाया, लॉ ऑफ मास एक्शन. नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रिएक्शन एक स्टेट पे आ जाएगा, वो स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम. एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, equilibrium state is that state where the speed or the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. So when the system reaches to equilibrium, we can write down the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So forward reaction is equal to what, forward reaction is equal to Kf into molar concentration of A:1 into molar concentration of B:1. And what is backward, Rb, Kb, molar concentration of C:1 into molar concentration of B:1. मैं एडजस्ट कर देता हूं, KF अपॉन KB कर देता हूं, KB को नीचे ले लिया तो A और B CD के नीचे आ जाएंगे. मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. नाउ KF is a rate constant for forward reaction, KB is a rate constant for backward reaction. So constant upon constant will give rise to a new constant, and that constant will be called as Kc, and this time the Kc will be called as equilibrium constant. Why it is called as equilibrium constant? Because it is a product of forward and backward reaction and it is found out which state at equilibrium state. मतलब KF and KB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, KC. So finally I can write down here that KC is equal to molar concentration of C into molar concentration of D upon molar concentration of A into molar concentration of B. So अगर मुझे equilibrium constant को डिफाइन करना है तो मैं इसको डिफाइन कैसा करूंगा गाइस, तो नोट डाउन दिस पॉइंट कि अगर मुझे equilibrium constant को डिफाइन करना है तो it is defined as the ratio of, ध्यान से सुनना, the ratio of product of molar concentration of products upon molar concentration of reactants raised to the power equal to the stoichiometric coefficient. फिर से बता रहा हूं, देखो पहली बात तो एक रेशो है, इट्स अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी प्रोडक्ट है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, ए और बी रिएक्टेंट है, रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सिंपल. सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Very simple to understand कि equilibrium constant कैसा लिखेंगे, तो equilibrium constant is defined as the product of molar ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactant raised to the power equal to the stoichiometric coefficient. For example, अगर मैंने आपको एक रिएक्शन दिया N2 gas plus 3 moles of H2 gas gives 2 moles of ammonia in equilibrium, और मैं आपको बोलूंगा सबके मैं आपको मोलार कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूं. चलो I ask you to write down Kc, तो आप बोलेंगे सर Kc is equal to molar concentration of ammonia raised to 2 upon molar concentration of N2 raised to 1
to molar concentration of H2 raised to 3. मतलब products को आप ऊपर लिखेंगे, reactant को आप नीचे लिखेंगे, raised to the power equal to the stoichiometric coefficient. Suppose ये reaction दिया 2 moles of HI decomposed to gives H2 plus I2. तो आप बोलेंगे सर Kc will be equal to molar concentration of H2 raised to 1 molar concentration of I2 raised to 1 upon molar concentration of HI raised to 2. आपको अप्लाई करने आना चाहिए, सिंपल बात है. प्रोडक्ट को ऊपर डालो, रिएक्टेंट को नीचे डालो. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट. दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन हम लोग केसी क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज सारा आइडिया मोलार कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है. सब कुछ मैंने यहाँ पर किस में मेंशन किया है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन. इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो? केसी लिख रहे हो. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. अगर सपोज ये पूरा रिएक्शन अगर मैंने गैस फेज में पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस किया होता, किस में एक्सप्रेस किया होता? पार्शियल प्रेशर में. तो आई क्लियर दिस अप. सपोज मैंने पार्शियल प्रेशर में लिया है जैसा, लेकिन इन जनरल मैं आपको लिख के दे देता हूं पहले ये कि इन जनरल ये जो पूरा रिएक्शन लिखा है, ध्यान देना कि अगर A मोल्स ऑफ A लिया प्लस B मोल्स ऑफ B लिया गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, और इस पे मैं आपको बोल रहा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो. तो आप बोलेंगे सर क्या चाहिए आपको? मैंने बोला मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको. तो नाउ यू विल से अकॉर्डिंग टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन Kc इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू स्मॉल c D raised to small d upon molar concentration of A raised to small a and molar concentration of B raised to small b. So this is the equilibrium constant where the things are expressed in partial pressure and small a, B, C, D are the stoichiometric coefficients. Simple. लेकिन suppose if I give this reaction as A moles of A in gaseous state plus B moles of B in gaseous state gives C moles of C in gaseous state plus D moles of D in D moles of D in D in gaseous state, and I said okay, now the concentration are given in partial pressure, so you will say sir Kp will be equal to, instead of Kc you will write down what? Kp will be equal to product क्या है? C और D. तो partial pressure of C raised to small c partial pressure of D raised to small d upon reactants partial pressure of A raised to small a into partial pressure of B raised to small b. अब ये क्या बन गया आपका? ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया. बट यहाँ पर जो भी आपने एक्सप्रेस किया वो किस में एक्सप्रेस किया? पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस किया. ओके, यू हैव एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड नॉट इन केस ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन. तो केसी कब यूज करना? जब मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया. केपी कब यूज करना? जब पार्शियल प्रेशर दिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. और हम लोग ये लॉ ऑफ मास एक्शन को कहां पर अप्लाई कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम पे हमेशा रेशो आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, हमेशा रेशो आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं और मैं आपको ये लिख दूं कि N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NO गैस. मैंने बोला इस पे Kp अप्लाई करो. सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने बोल दिया द सिस्टम रीचेस टू इक्विलिब्रियम. सो एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, प्रोडक्ट क्या है? NO. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेज टू 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेज टू 1 क्योंकि वन टाइम है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू 1 क्योंकि वो वन टाइम है. सो दिस इज Kp एंड Kc. अब हम लोग क्या करेंगे? Kp और Kc का रिलेशन निकालेंगे. Okay, so let's find out the relationship between Kp and Kc. I'll clear this up. And Kc. Simple. Again, let us consider one reaction. A moles of A gaseous state plus B moles of B gaseous state gives C moles of C in gaseous state plus D moles of D moles of D in gaseous state. Now, suppose if I ask you to apply Kp
लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, ये रिएक्शन किस पे आ गया है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो आप बोलेंगे सर एट इक्विलिब्रियम स्टेट Kp will be equal to partial pressure of C raised to small c, partial pressure of D raised to small d, okay, upon partial pressure of A raised to small a into partial pressure of B raised to small b. आपने मुझे ये बता दिया. Now, do you remember ideal gas equation? Ideal gas equation क्या बोलता है? Ideal gas equation, we assume all the gaseous molecules are behaving ideally. Ideal gas equation बोलता है PV is equal to nRT, मतलब फॉर गैस A PA इंटू V, ठीक है, या V मैं नीचे ले लूं उसको, सपोज V मैंने नीचे ले लिया, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दैट P अपॉन NV इज इक्वल टू P इज इक्वल टू NV, ओके, यहाँ का जो V था वो मैंने यहाँ नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, सो नाउ इट बिकम्स व्हाट, P इज इक्वल टू N अपॉन VRT, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन हो गया, P इज इक्वल टू N अपॉन VRT, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर गैस मॉलिक्यूल A के लिए क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू NA अपॉन VRT, टेम्परेचर तो हम लोग कांस्टेंट ही रखने वाले. Now N upon V क्या होता है, N upon V is molar concentration, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स इज मोलार concentration. So N upon V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N upon V हम लोगों ने वॉल्यूम लीटर्स में लिया, तो N upon V की जगह पे लिख सकता हूँ मोलार concentration of ART. सिमिलरली PB के लिए फिर क्या हो जाएगा, PB will be equal to molar concentration of BRT. PC के लिए क्या हो जाएगा, PC will be equal to partial pressure of C will be equal to molar concentration of CRT. Partial pressure of D will be equal to molar concentration of DRT. Now we will substitute this idea, the entire idea, ये पूरे idea को हम लोग substitute करेंगे first equation में, तो हमको क्या मिलेगा, what we will get, we will get Kp is equal to, now partial pressure of C की जगह पे क्या आ जाएगा, partial pressure of C की जगह पे क्या आ जाएगा, molar concentration of C RT raised to small c into molar concentration of D RT raised to small d upon molar concentration of A RT raised to small a into molar concentration of B RT raised to small b. इसको ओपन करेंगे, so Kp will be equal to, ये क्या हो जाएगा, molar concentration of C into RT raised to C, ठीक है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D इंटू RT रेस टू D अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू स्मॉल a, तो RT रेस टू स्मॉल a, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू स्मॉल b इंटू RT रेस टू स्मॉल b. नाउ लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे, देखो बराबर, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं दैट A रेस टू C इंटू A रेस टू D, तो वो क्या होता है, A रेस टू C प्लस D होता है. तो देखो यहाँ पर यूज करेंगे RT रेस टू C, RT रेस टू D इज RT रेस टू C प्लस D. सो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट Kp इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू स्मॉल c D रेस टू स्मॉल d इंटू RT रेस टू C प्लस D, ठीक है, अपॉन A रेस टू स्मॉल a इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू स्मॉल b, और नीचे क्या आ जाएगा, RT रेस टू क्या आएगा, A प्लस B, ठीक है. अब बराबर देखो, अगर यही इक्वेशन पे ऑन दिस इक्वेशन इफ यू अप्लाई Kc, अगर इस पे Kc अप्लाई किए होते तो आपको Kc क्या मिलता, Kc इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू स्मॉल c इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू स्मॉल d अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू स्मॉल a इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू स्मॉल b. तो ये आपको पूरा Kc मिलता, बराबर देखो. So this value is your C raised to small c, D raised to small d upon A raised to small a, B raised to small a, मतलब this part is Kc. So we can write down Kp is equal to क्या आएगा, Kc, because ये पूरा पार्ट जो है वो एक्चुअली में Kc है. अब बचा क्या, अब अगेन लॉ ऑफ इंडाइसिस आप
ऐड करो। सो लॉ ऑफ इंडाइसिस, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, आपको याद होगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया दैट ए रेस टू सी प्लस डी अपॉन ए रेस टू ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाता है, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, ए रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ओके, लिख सकता हूं ना, ए रेस टू सी प्लस डी अपॉन ए रेस टू ए प्लस बी अपॉन, तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। मतलब लॉ ऑफ इंडाइसिस हम यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट आर टी रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। बट आप बोलेंगे सर सी प्लस डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ए प्लस बी आर नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू number of moles of product minus number of moles of reactant। सिंपल है, number of moles of product minus number of moles of reactant, very simple। so अब number of moles of product minus number of moles of reactant लिया तो this is nothing but the change, और change के लिए हम लोग डेल्टा यूज कर सकते हैं। so finally what we can write down that kp is equal to kc rt raised to delta n, but delta n is nothing but number of moles of product upon minus number of moles of reactant। you need to analyze this, you need to understand this। तो आपको मिल जाएगा kp और kc का रिलेशन। सो kp और kc का रिलेशन हम लोग सिंपली कैसा निकालेंगे, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा n। सो kp is equal to kc rt raised to delta n। बट गाइस याद रखना ये चीज को, मैं अप्लाई करके आपको बताता हूं उसके अंदर। तो गाइस दिस डेल्टा n रिमेंबर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट है और गैसियस रिएक्टेंट है, इसके लिए मैं क्या करता हूं पता है, स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि तुम लोग ऐसा याद रखो, यू रिमेंबर इन दिस पार्ट कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन डेल्टा n यू राइट डाउन डेल्टा ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस तरीके से तुम याद रखोगे तो बहुत इजीली तुमको याद रहेगा। अच्छा, इसको अप्लाई, अब अप्लाई कैसा करेंगे केपी केसी को, सबसे पहली बात आर, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, वन ऑफ द आर वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, याद होगा आपको, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ये वाला वैल्यू हम यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। ऑब्वियसली टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में हो जाएगा। अब अभी इसका आपको मैं एप्लीकेशन सिखाता हूँ। Try to understand this। Now suppose मैंने एक रिएक्शन लिया, ओके, 2 moles of HI gives H2 plus I2 gas। okay, I ask you to find Kp and Kc का रिलेशन। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 1 + 1 2 है, गैसियस रिएक्टेंट कितना है 2 है, तो आंसर क्या होगा इसका 0, मतलब डेल्टा Ng क्या हुआ 0। सो आप लिखोगे Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा Ng, डेल्टा Ng इसकी जगह पे क्या आएगा 0। सो Kc इंटू RT रेस टू 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा Kc, मतलब इस रिएक्शन में Kp इज इक्वल टू क्या है Kc है। वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल, हम लोग ने ये ले लिया। अब सपोज मैं बात कर रहा हूं Kp एंड Kc का और एक रिएक्शन लेके आपको अप्लाई करता हूं। देखो, सपोज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिया है या डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ले लिया, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या है, 2 moles ऑफ अमोनिया गैस डिकम्पोज टू गिव N2 गैस प्लस 3 moles ऑफ H2 गैस, सब गैस में है। सो यहाँ पर पहले मैं फाइंड करूंगा डेल्टा Ng प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट कितना है 1 + 3 यानी 4 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना है 2, तो आंसर आपका क्या आएगा 4 - 2 = 2, तो मतलब Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा Ng, मतलब RT रेस टू 2 हो गया, सिंपल। थर्ड रिएक्शन सपोज ये लिया है मैंने,
C solid plus half O2 gas gives CO gas. तो अब इसमें बोला Kp और Kc का रिलेशन निकालो, तो आप पहले निकालो डेल्टा Ng। तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना है, तो ये देखो कार्बन सॉलिड में है तो इसको तो हम लोग पकड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये सॉलिड में है, हमको गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करना है, तो मिस्टेक नहीं करना, सॉलिड को छोड़ देना। तो सॉलिड को छोड़ दिया मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा हाफ, 1 माइनस हाफ मतलब कितना बचा हाफ, मतलब यहाँ पर क्या आएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू 1/2। ओके, so this is how you will apply to find Kp and Kc का relationship in any kind of a equation. प्लस मैं आपको अभी कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई क्लियर दिस अप। पहले आप Kp Kc का रिलेशन समझ गए, कैसा अप्लाई करना है। डेल्टा Ng स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये याद रखना, सॉलिड लिक्विड हुआ तो उसको छोड़ देने का, उसका डेल्टा Ng फाइंड नहीं करने का। अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, एंड फाइंड्स यूनिट ऑफ Kc और Kp जिसमें भी पूछा है मतलब। तो समझो एक रिएक्शन दिया हम लोगों को, रिएक्शन दिया है C2H5OH liquid no, ethanol is a pure liquid in equilibrium with C2H5OH gas, change of phase। या तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये कोई भी प्योर लिक्विड, ठीक है, प्योर लिक्विड या तो प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेना, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेना। मतलब यहाँ अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, Kc इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH अपॉन गैस में है जो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर गैस लिख देता हूँ उसके लिए OH गैस अपॉन molar concentration of C2H5OH liquid. Okay, so since the pure liquid is taken as what 1, आपका आंसर सिर्फ क्या होगा, इसकी जगह पे आप क्या डालोगे 1, तो आपका आंसर सिर्फ बैठेगा Kc is equal to C2H5OH गैस। ठीक है, ये आपने डाल के छोड़ दिया इधर पे, क्लियर है। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई दिस, मतलब ऐसा डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देने का। वैसे अगर सॉलिड आया तो प्योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है I2 सॉलिड सब्लिमेशन में I2 गैस बन रहा है, कि सब्लाइम्स टू फॉर्म I2 गैस। सो नाउ अगर मुझे Kc अप्लाई करना है या Kp अप्लाई करना है जो भी, तो Kc इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 सॉलिड। तो I2 सॉलिड प्योर सॉलिड तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया तो आपको सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर I2 गैस। So this is how you will apply Kp and Kc with respect to pure substance। अगर pure substance दिया है तो you take that pure substance always as 1, remember, okay, just remember this। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फेस ट्रांजिशन, देखो सिर्फ एग्जांपल्स में फेस ट्रांजिशन हो रहा है, ये याद रखना, मतलब लिक्विड से गैस हो रहा है, सॉलिड से गैस हो रहा है, तो फेस ट्रांजिशन में हम लोगों को अगर प्योर लिक्विड दिया है, ठीक है, और या तो कोई प्योर सॉलिड दिया है, तो इट शुड बी ऑलवेज टेकन एज 1। ओके, फेस ट्रांजिशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, लिख देता हूं इधर पे। रिमेंबर दिस, तो फेस ट्रांजिशन में इट इज ऑलवेज टेकन एज 1। अब नेक्स्ट यूनिट कैसा निकालेंगे, इस पे फोकस करते हैं, Kc और Kp के यूनिट कैसा निकालेंगे, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हम लोग बात करते हैं यूनिट्स, चलो Kc के यूनिट्स निकाल के देखते हैं हम लोग। तो सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया है, H2 plus I2 gives 2HI। मैंने आपको बोला Kc का यूनिट निकालो, तो Kc विल बी इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू 2
अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो देखो अभी Kc के लिए ये H2 है, HI है, HI का मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब, ये किसके लिए हो गया, H2 के लिए। I2 के लिए क्या हो गया, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। देखो ये एक और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 1, फिर ये एक और एक कैंसिल कर दोगे इसके अंदर तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर Kc का कोई यूनिट नहीं है, सिंपल। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझो मैंने ये लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। मैंने बोला Kc का यूनिट निकालो, तो Kc विल बी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेस टू 2 अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेस टू 3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, रेस टू 2 आ रहा है, मतलब मोल्स पर डीएमक्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलार भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली पहले ऐसा लिखता हूँ, मोलार रेस टू 2 अपॉन मोलार रेस टू 1 और मोलार रेस टू 3। तो ये 1 टाइम कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब ये ऊपर चला गया तो मोलार इनवर्स हो गया, मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब रेस टू -1। तो आपका आंसर क्या आएगा, मोल रेस टू -1 डीएम क्यूब। अब यही जगह पे कोई मुझे बोला सर इसी रिएक्शन का आप केपी निकाल कर, केपी का यूनिट निकालो, मेरा केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर, तो सेम बैठेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेस टू 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेस टू 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेस टू 3। अब पार्शियल प्रेशर के हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, प्रेशर का यूनिट कर सकते हैं। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। समझो मैंने ATM लिया यूनिट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ATM रेस टू 2 अपॉन ATM रेस टू 1 इंटू ATM रेस टू 3। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो गया, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, 2 बचेगा ना, ओके, रेस टू 2, so रेस टू 2 और ये डीएम क्यूब रेस टू 6 होगा, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी। सो ये 2, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 गया, तो फिर अगेन क्या बचा, यहाँ पर अगेन बचेगा 2 बच जाएगा, इसका इनवर्स ले लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ATM रेस टू -2। ओके, तो ATM रेस टू -2 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ यूनिट ऑफ एनी यूनिट्स ऑफ एनी Kp और Kc इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप Kp और Kc का यूनिट्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब एक और एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज ये एग्जांपल लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट, इट इज बेकिंग सोडा। जब ये ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा इन इक्विलिब्रियम, इट विल फॉर्म Na2CO3 in solid state plus CO2 in gaseous state plus H2O in gaseous state। डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। Now Kc will be equal to molar concentration of Na2CO3 in solid state into molar concentration of CO2, ठीक है। किस में आ जाएगा ये, सपोज मैंने लिख दिया इन गैसियस स्टेट, लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर लिख दिया मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिख दिया, डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaHCO3। तो अब सब कुछ मैंने देखो इसमें मोलार कॉन्सेंट्रेशन में ही लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन इन विच कॉन्सेंट्रेशन, इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन। बराबर से सब मोलार कॉन्सेंट्रेशन में लिखा है मैंने, और किसी में भी चेंज नहीं किया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसका यूनिट निकाल के दो, ये रेस टू 2 हो गया। सो नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली वी कैन राइट डाउन हियर कि अगर मुझे मोलार कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट निकालना है तो देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोलार मोलार मोलार, और ये क्या होगा, मोलार रेस टू 2। सो आई कैन राइट डाउन ना मोलार रेस टू 3 1 1 1 अपॉन मोलार रेस टू 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ मोलार, दैट इज मोल्स पर लीटर। सो दिस इज हाउ यू कैन डिड्यूस
any kind of concentration, any unit with respect to Kp and Kc. Okay, remember this point. Now remember Kp और Kc है ना, रिएक्शन के कोएफिशिएंट से भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल चेंज इन ऑर्डर ऑफ Kc एंड Kp. तो चलो Kc समझा दिया तो Kp हो गया, तो एक ही बात हो जाएगी. समझो मैंने एक रिएक्शन लिया है, ध्यान से देखना है रिएक्शन. H2 gas plus I2 gas gives 2 moles of HI gas. मैं बोला इस पे Kc अप्लाई करो. चलो, तो Kc will be equal to molar concentration of HI raised to 2 upon molar concentration of H2 into molar concentration of I2. ठीक है, समझो ये Kc1 है आपका. मैंने एक और एक रिएक्शन दिया आपको. अब इस रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ. देखो ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ. HI gives in equilibrium with H2 gas plus what, I2 gas. चलो Kc अप्लाई करो तो ये Kc2 हो गया सपोज. तो Kc2 will be H2 into I2 upon what, HI raised to 2. If I ask you what is the relationship between Kc1 and Kc2, तो बराबर देखो तो वो इनवर्स है. मतलब अगर मैंने इस रिएक्शन को इसको इनवर्स किया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 upon Kc2 will be equal to HI raised to 2 upon इनवर्स कर दिया H2 into what, I2. अगर आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंबाइन करोगे, so we can write down from 1 and 2. From 1 and 2 what we can write down, that Kc1 is equal to 1 upon Kc2. मतलब the values of equilibrium constant can change with respect to the direction, with respect to the coefficient. आप डायरेक्शन चेंज करो, आप कोएफिशिएंट चेंज करो. देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां पर मैंने डायरेक्शन चेंज किया, तो डायरेक्शन चेंज किया तो पूरा वैल्यू चेंज हो गया. Kc और Kc डैश का मतलब Kc1 इज इनवर्स ऑफ Kc2. अब समझो मैंने इसके अंदर है ना दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं कोएफिशिएंट चेंज करता हूं. देखो कोएफिशिएंट चेंज करता हूं, आप बराबर से देखना. लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन कोएफिशिएंट. सपोज मैंने ले लिया अमोनिया का. चलो हाँ, N2 gas plus 3 moles of H2 gas gives 2 moles of NH3 gas. तो यहाँ पर अगर मैं Kc अप्लाई करूंगा, समझो Kc1 लिया है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़ टू 2 अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 into मोलार कॉन्सेंट्रेशन H2 रेज़ टू 3. ठीक है, हो गया सिंपल फर्स्ट इक्वेशन. सपोज मैं एक और एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर. इसी के अंदर इक्वेशन ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है इक्वेशन, that 2 moles of, नहीं हाफ कर देता हूँ, हाफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ठीक है, प्लस 3/2 मोल्स ऑफ H2 गैस. मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिया. अब ये 2/2 1 हो जाएगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस. तो अगर मैंने यहाँ पर Kc अप्लाई किया तो Kc2 विल बी इक्वल टू अमोनिया रेज़ टू 1 अपॉन N2 रेज़ टू हाफ, ओके, एंड H2 रेज़ टू 3/2. अब मुझे Kc1 और Kc2 का ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है, दिस प्रोडक्ट वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू हैज टू बी इक्वल. तो अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन में स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अगर मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया तो ये इक्वेशन अभी हमको कैसा दिखाई देगा, दैट Kc2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू NH3 रेज़ टू 2 अपॉन N2 रेज़ टू, अभी देखो स्क्वायर किया तो 2/2 1 हो जाएगा. इसको स्क्वायर किया H2 को तो 3/2 इंटू 2 करोगे तो 3 हो जाएगा. सही है ना. 3 इसको स्क्वायर किया, N2 को स्क्वायर किया तो ये ऐसा था, N2 हाफ था, इसको स्क्वायर किया तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2/2 1 होगा. H2 जो था वो 3/2 था, इसको स्क्वायर करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 and 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 3. अब देखो ये पूरा पार्ट अगर मैं इक्वेशन 2 लिख दूं तो दिस पार्ट इज सिमिलर टू दिस. सो फ्रॉम 1 and 2 what we can write down, that Kc1 is Kc2 the whole square. मतलब आप कोएफिशिएंट चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो तो Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है. कीप दिस इन माइंड फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप फॉर सेम रिएक्शन but for different direction and for different coefficient. Okay, so this was the second lecture.
अब हम लोग थर्ड लेक्चर पे जाएंगे तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. तो टिल देन टेक केयर गाइस, मेक नोट ऑफ एवरीथिंग एंड बाय. See you next time, next lecture.